of all, I would like to extend my heartfelt gratitude to the Ramla Bango Welfare Society, the President, Mr. Rekka Doi, and the General Secretary, Mr. Iga Kadu, for organizing a felicitation program for us. I think the recognition that we got has cemented the fact that we have made it to the top, and I'm very much grateful for this program and for this platform, so that I could share a few of my views and my journey of civil services, of getting into civil services. It actually started when I appeared for my AE exam, that is assistant engineering exams, and because of the fiasco, there was no result of the mains exam. I had appeared for the mains, AE mains, but there was no result because of the fiasco, and that's how I started preparing for civil services. My civil services journey was pretty simple. I attended the classes and I used to go back home and make notes. And simultaneously, I also took classes for my optional subject, that is public administration. And by the time my course was over, the notifications were out, and that's how my journey began, and that's how I have achieved what I have achieved. And I would also like to thank my parents, my father, Dr. Tai Riso, for guiding me throughout this journey, my mother, who has been a moral support in my life and also in this civil services journey, and my brothers and all the well-wishers and my friends, Obinam and Bunny, Kenpi, all of them. I would like to uh, express my heartfelt gratitude and tell them that it would not have been possible without the support of all my well-wishers and friends. And also to the forthcoming aspirants, the ones who look up to us or who wants to get into the services, I would advise them to take it very seriously right from the outset itself. I would tell them to attend classes if they can, and it's not that you only have to attend the classes. You can also very well prepare it from your house or from your hostel or from your room itself. It does not mean that you have to always attend the classes, but yes, you have to be very serious. I would advise them to make their foundation really strong, read up as many books as they can, write as many answers as they can, and if you attend classes, please speak up during the classes, because that itself trains you for the interview stage. So my advice for them would be to keep at it, be disciplined, make a routine, and follow the routine thoroughly. And I'm sure everybody can make it to the civil services, because if I, who was not from a humanities background, if I could make it, then everybody can make it. So yeah, I would like to wish them all the best, and thank you. My name is Goke Doke. मेरा एक्चुअली क्वालिफिकेशन है बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, और मैं 2018 में कंप्लीट किया हूँ मेरा बीटेक, and then since then I'm working in Indian Oil Corporation Limited. My journey for this exam begins in 2021. 2020 में भी अटेम्प्ट किया था, but that was मतलब मैंने ऐसे ही अटेम्प्ट कर दिया था because I was already in the job. But 2021 से मैंने धीरे धीरे करके, क्योंकि since I am a full time working person, so धीरे धीरे करके मतलब दिन में रफली 1.5 2 hours 3 hours करके मैंने स्टार्ट कर दिया था, एंड 2025 में आके फाइनली क्लियर किया हूँ. माई प्रिपरेशन वॉज नॉट लाइक कि डेडिकेटेडली पूरा पढ़ाई किया है, बट देन आई चूज टू वर्क फॉर लॉन्गर टाइम. I choose to study for longer time in a very, in an interval like 2 hours, 4 hours interval. I could manage only 2 to 4 hours in a day. So that's how I spent my like 3 years in giving this exam. And then for one advice for the future upcoming aspirants would be, many people think that there is competition. Competition is very tough. But I believe competition is only tough when you start preparing after seeing the advertisement or a notification from the any recruitment agency. But I think since you know that this exam is going to come and there will be exam, maybe if it doesn't happen in like 1-2 years, it will definitely happen in 3-4 years. So you should start early. If you start early before everyone start preparing, I think there is no competition, because I cleared this exam with a little effort, but then I maintain my discipline. I keep on studying for 2-3 hours a day.
सो ऐसा नहीं कि मतलब दिन में 10 घंटा या 15 घंटा भर के मैंने क्लियर किया। इवन इन द टाइम ऑफ मेंस प्रीलिम्स के लिए तो मैंने लीव भी नहीं लिया था, अराउंड 1 वीक का लीव लिया था। एंड देन मेंस के लिए भी 10-15 दिन पहले ही मैंने लीव लेके पढ़ाई किया था। एंड देन इंटरव्यू के लिए तो मैंने ऐसे ही दे दिया। सो इट्स नॉट दैट टफ, यू शुड बी डिसिप्लिन अबाउट योर स्टडी, थोड़ा थोड़ा करके करते रहना है। एक्चुअली मेरा बैचलर्स में हम BDS किया था, तो मेरे लिए ये जो जर्नी जो थोड़ा टफ था, क्योंकि हम सब कुछ नया से शुरू किया था ना। लेकिन भी हम वही बोलेगा कि हम लोग खुद में कॉन्फिडेंस रखना चाहिए ना। तो कॉन्फिडेंट होने से ही मतलब होगा। हम लोग फर्स्ट सोच लेना है कि हम लोग कर सकते हैं ये, तो होगा ये, वही बोलेगा। हाँ, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, क्योंकि हम जब ग्रेजुएट हुआ था तब निकला था ना, 2020 में निकला था ये, और उसके बाद अभी निकल रहे थे ना, तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। थैंक यू जी। बिल्कुल, मेरा जर्नी जो है लास्ट ईयर शुरू हुआ था, जो APCS का जर्नी है। सो जर्नी एक रोलर कोस्टर जर्नी का तरह रहा है, अप्स एंड डाउन्स बहुत हुआ है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपका हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन जो होता है, दैट इज़ व्हाट मेक्स द डिफरेंस। और यही जो फैक्टर्स है दैट हैज़ कंट्रीब्यूटेड या एट्रीब्यूटेड इन मेकिंग दिस थिंग पॉसिबल। सो मेरा कंसिस्टेंसी और मेरा जो डेडिकेशन रहा है, ये सबसे बड़ा फैक्टर रहा है मेरा जर्नी का दौरान। हालांकि अप्स एंड डाउन्स बहुत रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर आपका सोच, आपका विल एंड डिटर्मिनेशन अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। जी बिल्कुल। जो अपकमिंग एक्सपीरियंस है या जो भी जितना भी यूथ्स है जो सिविल सर्विस या कोई भी लाइफ का गोल हो उसको अचीव करना चाहता है, तो हमेशा 3 प्रिंसिपल फॉलो कीजिएगा आप लोग हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन। ये 3 जो फैक्टर्स है, ओवरलैपिंग है फैक्टर्स, लेकिन फिर भी ये तीनों का फैक्टर्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में अगर आप हार्ड वर्क और डिसिप्लिन नहीं होगा तो आपको यू वॉन्ट बी एबल टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ until and unless you don't have these factors or you don't work hard in order to accomplish something in your life. So किसी चीज़ को अगर आप चाहता है, किसी चीज़ को आप पाना चाहता है, तो you have to work for it, you have to burn your midnight oil in order to accomplish your aspirations and your dreams. So यही एक मैसेज है मेरा यूथ को। हाँ बिल्कुल, आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई हार्टफेल्ट थैंक्स एंड ग्रैटिट्यूड टू द Ramlabango Welfare Society for honoring us, for acknowledging our achievements, and I also believe that they will continue supporting student community, especially the youth community in the upcoming future also. इस तरह से जो सपोर्ट सिस्टम, जो एंकरेजमेंट जो दिया जाता है, वो जो हम लोग का सोसाइटी का जो बड़ा लोग, तो ये जो सपोर्ट सिस्टम जो है कंटिन्यूली चलना चाहिए, ताकि यूथ एम्पावर्ड हो, यूथ को एक मोटिवेशन मिले एंड अल्टीमेटली दे अचीव द गोल्स इन देयर ऑन रेस्पेक्टिव फील्ड्स। तो यही मेरा एक कामना रहेगा और मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा सोसाइटी को लेकर भी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वंस अगेन थैंक टू ऑल द पीपल ऑफ Ramlabango फॉर blessing us, for loving us, and for the warm gesture they have shown us this evening. So thank you. Good evening, everyone. My name is Kenbam Nina. I'm from Buksin, Ninglok village, and आज हम यहाँ पे Ramlabango Welfare Society का felicitation program में आया है. They were invited me. मेरा journey it's a kind of a long journey. Almost it took 5 years. 2020-21 से हम start किया है preparation, and बहुत लंबा है, एंड देन बहुत टायरिंग भी समटाइम्स हुआ है, बिकॉज मेनी टाइम्स डिमोटिवेशन ऐसा बहुत आता है ना, बिकॉज लंबा जर्नी है एंड देन कुछ पता नहीं है कब एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। दिस थिंग्स बहुत मेंटली भी एग्जॉस्टिंग है, दिस थिंग्स एग्जॉस्टिंग था। बट आई वुड से एक ही चीज़ था जो मेरे पास था, कि वो मेरा प्रिजर्वेरेंस एंड होप ना, कि एक ना एक दिन तो कभी दिन एग्ज़ाम होगा, देन आई विल ट्राई माई बेस्ट ऐसा। And in addition to that, हम actually working aspirant था, I'm already in a government employee, तो वो भी मेरे लिए एक एडेड चैलेंज था कि टाइम मेरा बहुत स्प्लिट हो जाता था, कि जॉब ड्यूटी भी जाना है एंड देन पढ़ना भी है। तो मेरे लिए द बेस्ट थिंग आई डिड वाज आई टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से किया है हम जो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई सेट माय टाइमिंग फॉर सोने वाला और उठने वाला ना, द टाइमिंग को हम एकदम सेट किया है एंड ट्राई टू फॉलो द टाइमिंग एकदम रिलीजियसली।
तो उसके हिसाब से मेरा टाइम मैनेजमेंट का था तो थोड़ा वो चल गया था। एंड देन हाँ ये और जॉब एस्पिरेशन होने का एक मेरे पास प्लस पॉइंट था दैट कि मेरा इतना मेंटली हमको वो नहीं था ना कि बैक ऑफ द माइंड देयर वाज ऑलवेज वन थिंग कि हाँ नहीं होने से भी हो जाएगा ऐसा। तो ये मेरे लिए एक एडेड एडवांटेज था बीइंग ए वर्किंग एक्सपीरियंस एज कम्पेयर टू द अदर एक्सपीरियंस मेरा फेलो एक्सपीरियंस है। मेरा आने वाला भाई बहन लोग है उन लोग को हम वही एक बात बोलेगा कि पहले तो सबसे पहले प्लीज़ डू नॉट डाउट योर सेल्फ विदाउट चेकिंग योर सेल्फ, है ना। हम लोग बहुत बार होता है कि वो लोग कर लेगा फिर हम नहीं होगा, ऐसा बहुत होता है। बट आप पे सबसे पहले रेस में आप जाने से पहले मतलब हाउ कैन यू डिसाइड कि आप नहीं जीत पाएगा ना। तो पहले रेस में दौड़ लो एंड देन नहीं होगा तो नहीं होगा, नहीं होगा तो दैट इज़ वेल एंड गुड। कॉन्फिडेंस होना है और मेहनत तो सब करता है ना, तो उसमें तो कोई करना है नहीं करना है उसमें आई वोंट कमेंट मच ऑन दैट। एवरीवन डज देयर शेयर ऑफ हार्ड वर्किंग। बट हार्ड वर्किंग का साथ साथ आजकल बहुत एक बज़वर्ड आया है कि स्मार्ट वर्क, राइट। तो आप वो भी एक स्मार्ट वर्क करना भी एक बहुत एडेड एडवांटेज देता है समटाइम्स। और हम ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरा जो स्मार्ट वर्क था वो आपके लिए काम आएगा। सबका अपना अपना है, तो मेरे लिए जो काम आया है मे बी वो आपके लिए दूसरा के लिए काम नहीं आएगा। तो वही हम वही बोलेगा कि अपना वो स्ट्रेटेजी को यू हैव टू डेवलप बाय योरसेल्फ कि आप किस चीज़ में आप बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, किस चीज़ में आप अच्छा है, किस चीज़ में नहीं अच्छा है। एक एरिया में आप अगर आप थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं तो उस एरिया को आप थोड़ा फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा। एंड और जिसमें आप थोड़ा अच्छा है उसमें थोड़ा मतलब एडजस्टमेंट ना, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि वो नहीं पड़ेगा बट स्टिल ऐसा तो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट स्ट्रेटजी सबका सब ऐसे। और सबका अपना अपना कस्टमाइज दिस स्ट्रेटजी होता है एज पर एज माई एक्सपीरियंस। मेरा भी स्ट्रेटजी जो भी था हम अपना कस्टमाइज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मतलब वो डेवलप होते गया ना कि ये इसको ये करना है वैसे ऐसा करके। सो इट वर्क फॉर मी, लकीली इट वर्क फॉर मी। एंड हाँ वही है कि पढ़ते रहना है। एक एग्ज़ाम में नहीं हुआ तो डिमोटिवेट होके छोड़ना नहीं है कि इसमें नहीं होगा तो अगला टाइम तो होगा ही होगा ना। तो आजकल तो एग्ज़ाम सिस्टम भी इतना स्ट्रीमलाइन हो गया है, सोली मेरिट बेसिस पे होता है। तो ये एक हम लोग के लिए एक मोटिवेशन का काम करता है ना कि आज नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट टाइम तो अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट होने से होगा ही बोल के। आज हमारा 36 नारी कोयू से अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कॉम्बाइन एग्जामिनेशन से 6 को नौकरी मिला है। उन लोग क्रैक किया 36 नारी कोयू से। तो इसलिए हमारा रामलेबांगो वेलफेयर सोसाइटी ने फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखा और मैं बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग एमएलए ऑफ रामलेबांगो में चीफ पैट्रन बन के आज उन लोग के साथ शरीक हुए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा नारी कोयू का जो यूथ्स है डेडिकेटेड है और सिंसियर है, उससे प्रूव किया है आज। तो मैं बहुत अच्छा लगा और उन लोग को यही हम लोग का तरफ से कामना है, शुभकामना है कि आने वाला समय पे हमारा अपना कम्युनिटी को और अपना स्टेट को और देश को सेवा करेगा और पब्लिक सर्विस के लिए क्या क्या करना है। बहुत सा सीनियर्स लोग भी उन लोग को एडवाइस काफ़ी दिया है, उन लोग बहुत सिंसियरली सुना है। तो मैं अपना रामलेबांगो वेलफेयर सोसाइटी को भी अप्रिशिएट करता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म जो अरेंज किया है। और साथ ही साथ जो 6 में से एक थोड़ा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम का वजह से नहीं आ पाया, 5 लोग आज आया और उन लोग का तरफ से भी जो अपना सोच विचार को, कम्युनिटी सर्विस को और गवर्नमेंट में कैसा सर्विस करेगा, देश के लिए कैसा काम करेगा, उन लोग भी अपना व्यूज़ हम लोग को सामने में बताया। तो और उसको सुन के और भी हमें अच्छा लगा कि हमारा 36 नारी कोयू का यूथ्स भी अपना स्टेट के लिए, अपना कम्युनिटी के लिए, अपना देश के लिए सोच रहे हैं। तो इसके लिए मैं अपना जो 6 यूथ्स जो पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम जो क्रैक किया है उसका पेरेंट्स को भी मैं बधाई देता हूं कि उन लोग ने ऐसा नर्चर किया अपना बेटा बेटी लोगों को कि उन लोग अपना कम्युनिटी को, स्टेट को और देश को सर्व करने का मौका मिल रहा है। इस बार जिसने भी
कोशिश किया लेकिन नहीं हो पाया, उन लोग को भी ये हमारा तरफ से यही एडवाइस रहेगा कि अपना कोशिश जारी रहे। तो अगर आप लोग अगर कोशिश कर रहे हैं और डिटरमाइंड है तो आपका साथ हम देने के लिए, हम समाज भी और मैं एज ए लेजिस्लेटर भी मैं हमेशा आपके साथ रहेगा। तो कभी दिशाहीन नहीं होना है। तो जिस पिलर है, पिलर को एक एक्सपीरियंस के हिसाब से एक पिलर ऑफ सक्सेस बनाने के लिए सब कोशिश करना पड़ेगा। और मैं आशा करता हूँ कि मेरा 36 नारी कोय का जो हमारा यूथ है उन लोग ये दिल में ज़रूर रखेगा और कोशिश ज़रूर करेगा और उसके साथ देने के लिए हम और समाज साथ है। लोग गुनुक फंक्शन है गुनुक रामलेबांगो वेलफेयर सोसाइटी का गुनुक एपीसीएस लो 2024 के एपीसीएस लो ये दे क्रैक तो ना अगर गुनु पेलिटेशन रुतबे हो ऑर्गेनाइज तो गुनुक होगो आक्के गो 6 गो गुनुक होगो क्वालिफाइड तो गुनुक नारी कोयो रामलेबांगो एरिया गुनु पॉपुलेशन में मजबे कमती दो रिलाचिंग उनके अचीवर बहुत नंबर मजबे कायका अमरिला उनके या तो रामलेबांगो वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर्स ऑफिसर ऑफिशियल्स कादू पूरे पब्लिक मेकेनला उन हिलो बुलम ने कांग्रेचुलेशन ओके जीत पे उन हिलो ऑर्गेनाइज रितो हो उनके ऑनरेबल एमएलए ओके उनके सोसाइटी के चीफ पेट्रन ओके या तो उनके सीनियर ऑफिसर्स APCS, IPS officer gade, oke under secretary, oke secretary level oke uनको हो पूरा आला, उनको young achiever gade हमने बुलम ने advice दिखा, oke हो advice हो बुलम में का उनको root, that is उनको society, आगे दोलुम, आगे familium, यो development रिकेंडो दी, oke service के ethics है, oke public life लो यो रिकेंडो दे उनको advice का मुन मजा में मेकेंदू फिगुम लाचिन उनके रामलेबांगो वेलफेयर सोसाइटी हम पेलिटेशन प्रोग्राम हम चिन उनके इंडिविजुअल गद्दे सोसाइटी ऑफ वेल विशर गद्दे बुल स्पॉन्सर ला मुन हिलो हम ऑर्गेनाइज रूमला बुल पेलिटेशन रूमला ओके दोनाम रूमला रूम में नेगो मजा में केजा उनके रामलेबांगो होके ओके नारी को ओके पब्लिक गद्दे चिन केजा ऑफिसर ऑफिशियल गदम चिन अकेजा थैंक यू नो सक्सेसफुली रूम तो ओकयोंग अचीवर गदम ने उन हिलो होल पब्लिक स्टूडेंट ओक यादगो ऑफिस कादो दे ओक टॉप लेवल ऑफिसर लो हिलो उन ब्लेसिंग हम जिका बुलम कांग्रेचुलेशन ओक उनका न्यू लाइफ स्टार्ट होगो ब्लेसिंग दुगे काम ना उन हिलो जितना हम एज ए प्रेसिडेंट रामलेबांगो वेलफेयर सोसाइटी प्रेसिडेंट ऑफिसर बुक में अकेजा ओक उनका हिगे very notably उन्हें मेट का उन्हें रामलेबांगो वेलफेयर सोसाइटी है उन्हें गलाव सोसाइटी होके एक ऐसे सोसाइटी है होल कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ निये रामलेबांगो वेलफेयर सोसाइटी आरालो आदु ना उन्हें क्लान बेस है ना रिलीजियस बेस है ओनली रामलेबांगो लोग याद को इनहेबिटेंट का दो रामलेबांगो वेलफेयर सोसाइटी का मेंबर बरदू बुल एडवाइजर बरदू बुल का याद को उनका सोसाइटी का program policy yang bulu buku each and every individual uphold. Every mahilo ngunu mereka ngunu ak young achiever kadem ne ngunu hilo rutuba amdela leken goda ngunu sponsor nam participate na kadem oke hilo galo ho ngunu ke dolu ringmel oke nari koi ho Ramlebaंगो ko duna dolu loke pula mana blazers kadem chin atai kadem ne buku ne akeja हेकना प्रोग्राम में हमने सक्सेस दो नाम लगावे हमला होगों मिलते दान थैंक यू एमपीएल न्यूज़। तो आज का जो इवेंट रहा हम लोग का फेलिसिटेशन प्रोग्राम तो काफ़ी सक्सेसफुल रहा एंड देन आज यहाँ पर हम लोग इसीलिए हम लोग इस प्रोग्राम को दिया है कि हमारा वहाँ से एक छोटा सा जगह है वहाँ से 6 मेंबर जो है हम लोग का यहाँ से एपीसीएस उसमें क्रैक हुआ है। तो मेनली उनका नाम है आपका एक हो गया केमिन गामलिन Ibiriso and then Kenbom Rina Ibom Yodu ओके दोके रिजुम का है। इन 6 मेंबर्स ने हम लोग को वहाँ से क्रैक किया है। तो हमारे लिए रामलेबांगो 36 नारी कोय असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए हमारे लिए गर्व की बात है। तो स्पेशली मैं
उसके साथ में जो थैंक्स देना चाहूँगा जो हमारा वहाँ का जो पब्लिक है, जो ऑफिसर्स है, खास करके जिस टाइप का जो इवेंट रहता है, जो हमारा पब्लिक का जो ऑफिसर का सपोर्ट से ही हम लोग किया जाता है। लेकिन आज का इवेंट भी इसीलिए हम लोग सक्सेसफुली कर पाया कि हमारा वहाँ से इंजीनियर पोटे पादो, कोमकार न्योदो, उन दोनों ने आज के इवेंट को ये किया है, स्पॉन्सर किया है। तो रामलाबांगो वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उन दोनों को भी तहे दिल से शुक्रगुजार है। और जितना भी वहाँ का पब्लिक है, जितना वहाँ का ऑफिसर्स है, उन सभी से भी हम लोग रामलाबांगो वेलफेयर सोसाइटी की ओर से शुक्रगुजार है।